Hello, dear students. How are you? Students, you all know that due to global epidemic corona, we are not able to study in schools. So, we are starting our online English class which you can watch on your mobile or TV and can continue your studies. You are requested to watch these videos carefully and continue your studies continuously. I hope it will help you very much. My name is Vaishali Dubey. This is your textbook of General English 12th class, The Spectrum. Name of the book is The Spectrum. Similarly, another book name is The Spectrum Workbook of 12th General English class. Students, next, students, we are starting lesson number 2, A Friend Who Came from the Sky, 12th class. Do you know someone with disability? क्या आप किसी अपंग व्यक्ति को जानते हैं? सेकेंड, हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल? अपंग व्यक्तियों के बारे में आप क्या महसूस करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट? आपके विचार से उन्हें किस चीज़ की सर्वाधिक ज़रूरत है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम? उनके बारे में विशेष बात क्या है? These 4 questions in your description box and we will find all answers in our lessons. So, firstly, we want to discuss with you main points of this lesson. First one is, Minnie was a 12-year-old disabled girl. Second, she could manage her wheelchair. Third, she had no friends to play with. Fourth, Minnie could only watch the children at their play below in the neighborhood. Fifth, all of a sudden there was a thunderstorm with a cool breeze and big raindrops. Sixth, along with their red ball, the children saw a brown ball fall near them on the ground. Seventh, it flapped its wings, flew up, and landed on Minnie's lap in the balcony of the porch. She was startled. Eighth, it was sitting in her lap, huddled up in fright. Ninth, it was a duck, a yearly visitor to India from the cold north. 10th, he was separated from the flock, perhaps migrating back to his native land. 11th, it was due to thunderstorm. 12th, it was a soft, beautiful velvety bird. 13, Minnie and her mother fed the bird with rice and milk with an ink filler. 14, he was named Mitra. Now he got some energy and could flap his wings and began to hop. 15, a group of children came to Minnie to see the bird. 16, Anju said that he cannot make new friends because he had become lame. 17, now they understood the pain of the disabled Minnie and they become very friendly with her. 18, they came to know all about ducks by reading a book. 19, they released the duck into the nearby lake. 20, next day all the children came to Minnie to take her with them to play. 21, Minnie never had a reason to feel lonely again. That is main points of this lesson. Now let's begin first paragraph of this lesson.
It was one of those days in March. I requested all the students, all viewers, kindly look at your screen. Let's paragraph first. We have to discuss paragraph number first. It was one of those days in March when a wind started blowing from nowhere. हम इसको समझते हैं। मार्च माह के उन दिनों में से एक दिन था जब हवा पता नहीं कहाँ से चलना शुरू कर देती थी। फ्रॉम नाउ हियर एंडिंग इन अ थंडरस्टॉर्म, कहाँ से चलना शुरू कर देती थी। अ कूल ब्रीज had been blowing since afternoon and the sky was rapidly becoming overcast. कहाँ से हवा चलना शुरू कर देती थी और एंडिंग इन थंडरस्टॉर्म मतलब आंधी आ जाती थी। और अ कूल ब्रीज, BREEZE, ब्रीज यानी होती है हवा और कूल यानी ठंडा, ठंडी हवा। हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून, और दोपहर से ही ठंडी हवा जो है वो बह रही थी, चल रही थी। हवा बह रही थी, चल रही थी सिंस आफ्टरनून। एंड द स्काई वॉज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट, और आकाश जो था तेजी से बादलों से घिर गया था। देयर वेयर सडन क्रीक्स एज लिटिल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल। और ये जो मजबूत आंधी वाली जो हवा चल रही थी उससे छोटी छोटी पेड़ों की डालियां आवाज करती हुई टूट रही थी और वे नीचे गिर रही थी। क्रीक से यानी होता है आवाज, CREAKS। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर वर्ड्स में रेड कलर का जो मार्क करके जो वर्ड्स लिखे हैं उसकी वहाँ पर स्पेलिंग भी नीचे एक्सप्लेन की गई है, आप उसे देखेंगे। आपकी रीडर बुक आप अपने सामने रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड पैराग्राफ, मिनी सैट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट। मिनी जो है वो अपनी बालकनी के प्रथम तल के अपने जो फ्लैट है उसकी बालकनी में व्हील चेयर पर बैठी थी। मिनी जो है वो मेन कैरेक्टर का नाम है, एक लड़की का नाम है। एंड वॉच द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, ये जो लाइन है वॉच द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, ये एक क्वेश्चन का आंसर भी है। मिनी क्या कर रही थी? तो मिनी बालकनी में व्हील चेयर पर बैठी थी और नीचे और बच्चों को खेलते हुए, जो पार्क में बच्चे हैं उनको खेलते हुए देख रही थी। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग बीज आर द येलो लीव्स ऑफ द नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड्स। और जो बच्चे थे वो इतनी जो सख्त हवा आंधी चल रही थी और ना ही जो पेड़ के पीले पीले नीम के पत्ते उनके सिर पर गिर रहे थे, इन दोनों ही बातों की परवाह किए बगैर खेल रहे थे। वो तो अपने खेल में मग्न थे। उनको टू नॉट सीम टू माइंड मतलब वो बेपरवाही से खेल रहे थे। दे वेयर एंग्रोज्ड इन देयर बॉल गेम, और वे अपने खेल में मशगूल थे। ENGROSSED, एंग्रोज्ड मतलब बड़ी तल्लीनता से। सो इंटरेस्टेड आर इन्वॉल्व इन दैट यू गिव इट ऑल योर अटेंशन, मतलब अपना पूरा अटेंशन लगाकर जो है वो खेल रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। मिनी अंदर आओ, उनकी माँ जो है उन्होंने अंदर से आवाज़ लगाई। जस्ट अ मिनट मम्मी, सेड मिनी इन हर क्वेरिंग वॉइस, स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो। नीचे जो बच्चे गेम खेल रहे थे वो अपनी क्वेरिंग वॉइस को मतलब थोड़ी सी कहना चाहिए, इसमें क्वेरिंग का मीनिंग आप नीचे भी देख सकते हैं। यूजुअली बिकॉज द पर्सन इज़ नर्वस आर अफ्रेड, मतलब थोड़ी सी कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, मम्मी थोड़ी देर और, कुछ मिनट मम्मा, मैं आ जाऊंगी, ऐसा उसने बोला। जस्ट अ मिनट मम्मी, सेड मिनी इन हर क्वेरिंग वॉइस। स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड मतलब अपनी उसने व्हील चेयर जो थी उसको और आगे कर बाहर गेम को देखते हुए ऐसी बात कही।
हर मदर केम आउट ऑन बालकनी। उसकी माँ Her mother came out on balcony. Mini baby, it is too windy to sit outside. Come on inside. That is like a good girl. और माँ ने जो बोला, माँ ने कहा कि बाहर का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। मिनी बेबी, इट इज़ टू विंडी टू सिट आउटसाइड। कम ऑन इनसाइड, यानी अंदर आ जाओ। दैट इज़ लाइक अ गुड गर्ल, मतलब एक अच्छी लड़की की तरह जो है तुम अंदर आ जाओ। मिनी कंटिन्यू टू पीर थ्रो द बालकनी रेलिंग, और जो है रेलिंग में उसने जो है लगातार झांकना देखना जो है वो जारी रखा। इन वन मोमेंट शी प्लीडेड, और उसने कहा थोड़ी 1 मिनट और। हर मदर लुक एट द चिल्ड्रन इन द पार्क। उसकी माँ ने पार्क में बच्चों की ओर देखा। माँ ने जो है वो उन्होंने भी बच्चों को खेलते हुए देखा। हर मदर looked at the children in the park, shouted, and went back into house saying, और वो जो है अंदर गई, पीछे अपने घर को वापस गई। हाउस सेइंग, मिनी माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग, आई डोंट वांट यू टू गेट वेट। और ये कहते हुए अंदर जो चली गई कि ध्यान रखना पानी बरसने के पहले जो है तुम अंदर आ जाना। मैं नहीं चाहती, आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट वेट, मैं नहीं चाहती कि तुम भीगो। मिनी वॉज 12 years old and a spastic. It is another answer of one question. Minnie was 12 years ओल्ड एंड अ स्पेस्टिक। मिनी जो थी 12 वर्ष की, जन्म से ही विकलांग लड़की थी। A spastic is a person who has no control over his hand and legs from birth. एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका जन्म से उसके हाथ और पैर पर नियंत्रण नहीं होता। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती थी। आर बटन ऑफ हर शर्ट, अपने शर्ट की बटन नहीं लगा सकती थी। बट शी कुड क्रॉल, परंतु वह रेंग सकती थी। CRAWL, क्रॉल यानी रेंगना। एंड हैड लर्न टू यूज़ हर हैंड टू ब्रश हर टीथ, और उसने अपने हाथों से इस तरीके से सीख लिया था कि वो अपने दांतों में ब्रश कर सकती थी। एंड यूज़ अ स्पून टू ईट, और चम्मच से खाना खा सकती थी। शी कुड ऑल्सो मैनेवर हर व्हील चेयर, वो अपनी व्हील चेयर को भी मैनेज कर लेती थी, उससे चल सकती थी। शी वेंट टू अ स्पेशल स्कूल वेयर शी वॉज टॉट एक्सरसाइजेज, और एक वो विशेष प्रकार के स्कूल जाती थी जहाँ पर उसे कसरत करवाई जाती थी। एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी, और उसको वहाँ पर वाक चिकित्सा भी दी जाती थी। और उसके साथ साथ एज वेल एज लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट्स लाइक अदर चिल्ड्रन, और वह दूसरे बच्चों के समान पढ़ती भी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, परंतु मिनी का कोई दोस्त नहीं था। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months ago, 6 महीने पहले जब उसका परिवार इस घर में आया। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months ago, मतलब 6 महीने पहले जो है वो परिवार जो है इस घर में रहने आया। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, और उस समय जो है तब से, है ना, तभी से मिनी के साथ कोई खेलने वाला नहीं था। All the neighborhood children seemed to be busy with their own games and schools, और जो पड़ोस के जो दोस्त थे, उसके पड़ोस के जो बच्चे थे, ऐसा प्रतीत होता था जैसे पड़ोस के सारे बच्चे अपने खेलों और स्कूलों में व्यस्त रहते हैं। चिल्ड्रेन सीम टू बी बिजी, मतलब वो खेलों में और अपने स्कूल्स में बिजी रहते हैं। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ मिनी, और उन्होंने मिनी से कभी दोस्ती नहीं की।
It was Minnie's favorite pastime to watch the children at their play. बच्चों को खेलते हुए देखना मिनी का समय काटने का सबसे प्रिय मनोरंजन था. Big drops, next paragraph. Big drops of rain started to fall. वर्षा की जो है बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. फॉल यानी गिरना, रेन यानी पानी, बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बड़ी बूंदें. बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विथ देयर गेम. परंतु बच्चे खेलते रहे. द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन. बड़ी लाल गेंद उछल रही थी. बॉब्ड अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे जो है वो उछल रही थी. BOBBET, बॉब्ड अप यानी ऊपर, एंड डाउन ऊपर नीचे, उछलना कह सकते हैं इसे हम. सडनली देयर वॉज अनादर बॉल अमंग द चिल्ड्रन. अचानक बच्चों के बीच में, सडनली यानी अचानक बच्चों के बीच में एक दूसरी गेंद आ गई. अ ब्राउन वन, और उसका कलर क्या था? भूरा, भूरे रंग की गेंद. द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग. लड़कियां चीखने लगी. स्क्रीम करना यानी चीखना, SCREAMING, स्क्रीमिंग यानी चीखना. एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस. बच्चे जो है वो गला फाड़ कर चिल्लाने लगे. गला फाड़कर बच्चे चिल्लाने लगे. अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग when it suddenly flapped its wings and flew up. और तभी जब अचानक जो है a boy went down to touch, वो बच्चे जो है वो उसको जैसी पकड़ने छूने की उन्होंने कोशिश की है उस बॉल को. when it suddenly flapped, और तभी वो क्या हो गई? फ्लैप करना यानी उड़ने लगी. इट्स विंग्स एंड फ्लू अप, अपने पंखों को वो फड़फड़ाने लगी. उसने अपने क्या किया? पंख फड़फड़ाए. इट्स विंग्स है ना, एंड फ्लू अप, और क्या हो गई? वो उड़ गई. बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, इसके पहले कि मिनी को कुछ पता समझ पाए कि क्या हो रहा है, द न्यू बॉल हैड फ्लोन इनटू हर बालकनी एंड लैंडेड ऑन हर लैप. ये पता चल पाए मिनी को कि ये सब क्या हो रहा है, उससे पहले ही वो समझ पाए. जो गेंद थी इसके पहले ही कि नई गेंद जो है वो बालकनी में उड़कर आ गई और आकर उसकी गेंद गोद पर बैठ गई. It took a moment before Minnie recovered from her shock. और कुछ ही क्षणों के मिनी को जो है मिनी को संभलने में एक क्षण लगा. इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक. उसको अपने शॉक से संभलने में कुछ क्षण लगा. शी सा दैट द थिंग इन हर लैप वाज नॉट अ बॉल एट ऑल बट अ बर्ड. उसने देखा कि जो चीज़ उसकी गोद में थी, LAP लैप यानी होता है गोद, वह एक गेंद नहीं थी बल्कि एक क्या था? पक्षी था. बट अ बर्ड. इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, और वह जो है उसकी गोद में बैठा था. ऑल huddled up in fright, the rain started falling in earnest now. और वह उस भय से सिकुड़ा हुआ. ऑल हडल्ड अप मतलब वह जो पक्षी था वो भय से सिकुड़ा हुआ था, और वर्षा जो है अचानक जोरों से होने लगी. नेक्स्ट पैराग्राफ. Minnie shouted her mother as she came out to wheel the girl in. मिनी जो है उसकी माँ चिल्लाई और लड़की को जो है वो she came out to wheel the girl in. What is this? She cried, startled when she saw the word. मिनी जो है उसकी माँ चिल्लाई और लड़की को अंदर ले जाने के लिए बाहर वो आई. यह क्या है? जब उसने पक्षी को देखा तो वह चौंक करके बोली. She cried, startled when she saw the bird. मम्मी, it is a duck. मम्मी, यह बतख है. He came from the sky. वह आकाश से आया है. मिनी whispered. मिनी ने धीरे से कहा.
द वर्ड वॉज इंडीड अ डक, यद्यपि वह पक्षी वास्तव में, द वर्ड वॉज इंडीड अ डक, अ शॉबलर, SHOVELLER, शॉबलर, a yearly visitors to India, a yearly visitor to India from the cold north. वह पक्षी वास्तव में शॉबलर यानी होता है बेलचे के समान चोंच वाला बतख था। शॉबलर मतलब इसी बेलचा जैसा तो होता ना, उसके समान चोंच वाला बतख था। वह उत्तरी शीत क्षेत्र से भारत की ओर आने वाला वार्षिक यात्री। क्या था वो? उत्तरी शीत, नॉर्थ कोल्ड, भारत, इंडिया, या इंडिया, हाँ अपन नेशन उसको भारत, इंग्लिश में उसे इंडिया कहेंगे। तो वो उत्तरी क्षेत्र से भारत की ओर आने वाला जो है वो एक ईयरली विजिटर था, मतलब वार्षिक यात्री था। When he must have lost his way in the strong current of wind that was blowing, संभवतः अपनी मातृभूमि के लिए अपने झुंड के साथ वो यात्रा करते हुए तेज शक्तिशाली हवा में अपना जो है वो रास्ता भूल गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। द वर्ड ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड दैट वॉज ब्लोइंग। मतलब इतनी तेज हवा जो चल रही थी, इससे वह अपने नेटिव प्लेस को वापस जाते समय अपने झुंड से जो है वो बिछड़ गया था, ऐसा अनुमान लगाया गया था। इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट्स टू रिजॉइन हिज मैचेस ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स। अपने साथियों से पुनः मिलने के लिए अपने अथक प्रयत्नों में उसके पंखों को चोट लग गई थी। He was a beautiful wild duck. वह एक सुंदर जंगली बतख था। His down, DOWN, dawn यानी पंख, was soft and velvety. उसके प्रोएं मुलायम और मखमली थे। And his beak was broad like a shawl. और उसकी जो चोंच थी वो बेलचे के समान थी। SHOVEL, शॉवेल यानी होता बेलचा, बेलचे के समान जो थी वो चौड़ी थी। His feathers glinted, और उसके जो पंख थे वो चमकदार थे, ग्लिंट कर रहे थे, चमक रहे थे। ब्लू, वाइट एंड ब्राउन, चमकदार नीले, सफ़ेद और भूरे थे। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, और इस समय, एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय वह थका हुआ प्रतीत हो रहा था। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप, मिनी की माँ ने जब उसे उठाने की कोशिश की। व्हेन सडनली ही निब्ड, NIPPED, निब्ड यानी काट देना। जैसे मिनी की माँ ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसने अचानक चोंच से उसका जो है वो हाथ काट दिया। ही निब्ड हर हैंड, हैंड मतलब हाथ। आउच, शी क्राइड, और जैसे ही उन्होंने काटा तो वो उन्होंने बोला आउच, चिल्लाई। ड्रॉइंग हर हैंड बैक, और उन्होंने फिर अपने हाथ को पीछे खींचते हुए चिल्लाया। ऑल एट वंस ही फ्लूटेड टू द ग्राउंड एंड हडल्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम। अचानक उसने पंख फड़फड़ाए और फुदक कर एक कोने में दुबक गया। हडल्ड इन अ कॉर्नर, कॉर्नर यानी होता है कोना, लिविंग रूम के जो कोने में जाकर के वो दुबक गया। ऑल थ्रू द इवनिंग, शाम को सारे समय, मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक ईट, जो है मिनी और उसकी माँ जो है वो बतख को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। दे पुट ब्रेड, क्रम्स, नट्स एंड फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस समय उन्होंने रोटी के टुकड़े, दाने, फल उसके सामने रखे। बट ही वुड नॉट टच अ थिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं छुआ, एक भी चीज़ नहीं छुई। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क, सजेस्टेड मिनी, माँ ने बोली, मिनी ने कहा मम्मी उससे कुछ मसले हुए चावल और दूध दे दो, मिनी ने सजेस्ट किया, यानी सुझाव दिया। हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस इन अ बॉल,
BOWL बॉल यानी एक कटोरा। उसकी माँ ने एक कटोरे में कुछ पके हुए चावल को मसल दिया। एडेड मिल्क एंड शुगर और उसमें दूध और शक्कर मिलाया। एंड ओपनिंग द वर्ड्स बीक और बट, उस पक्षी के चोंच को खोला। फैड हिम विथ एन इंक फिलर, और पक्षी का मुंह खोलकर ड्रॉपर से उसे क्या किया, खिला दिया। इंक फिलर यानी होता है ड्रॉपर। As soon as he had some food in his stomach, ज्यों ही उसके पेट में कुछ भोजन गया, STOMACH स्टमक यानी पेट, भोजन पहुंचा। द डक बिकम विजिबली मोर अलर्ट, और बतख में क्या हो गई, जान आ गई, अलर्ट आ गई, अलर्टनेस आ गई। हिज आइज ब्राइटेंड, उसकी आंखें जो हैं वो चमक उठी। एंड ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स, और वो अपने पंख खोलने की कोशिश उसने की। बट गेव इट अप आफ्टर अ फ्यू एफर्ट्स, और परंतु कुछ प्रयत्न करने के बाद, आई नो वॉट हिज नेम इज, परंतु कुछ प्रयत्न करने के बाद उसने और प्रयत्न करना जो है वो बंद कर दिया। gave it up after a few efforts. I know what his name is, मैं जानती हूँ इसका नाम क्या है। It is मित्र, मित्र है, मिनी ने कहा। मिनी सैड हर मदर स्माइल, उस समय उसकी माँ ने जो है मुस्कुरा दी। Where shall we put मित्र to bed, मिनी मित्र को कहाँ सुलाएंगे। हर फादर आस्क्ड हर, उसके पिताजी ने उससे पूछा। पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी, पापा मैं उसे अपने पास सुलाऊंगी। मिनी ने बोला मैं उसे अपने पास सुलाऊंगी। ही मे नीड मी इन द नाइट, उसे रात में मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। सैड मिनी, मिनी ने कहा। फाइनली दिस सेटल्ड मिथ इन द बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ बिसाइड्स मिनी बेड, और उसके बाद में अंत में मिनी को उसके पुआल से भरी हुई टोकरी में बिठा दिया, मिनी के बिस्तर के बगल में। कॉन्ट्ररी टू हर एक्सपेक्टेशंस, उसकी अपेक्षा के विपरीत, मित्र डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल, मित्र ने रात भर मिनी को नहीं जगाया, रात में मिनी को बिल्कुल नहीं जगाया। When she woke up early in the morning, लेकिन सुबह वह जब जल्दी उठी, मिनी's first thought was to look into the basket by her beside. To her horror to realize it was empty. उसने अपने पास में रखी पलंग के पास रखी टोकरी को देखने का विचार उसके मन में आया। उसे खाली देखकर वो क्या हो गई, हॉरर यानी घबरा गई। मित्र मित्र शाउटेड मिनी, मिनी ने कहा। मित्र मित्र शाउटेड मिनी, मित्र मित्र गेटिंग अप ऑन हर एल्बो, कोहनी के बल उठते हुए मिनी ने जोर से पुकारा। देन शी saw him looking brightly at her from the bathroom. She burst out laughing. लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम से उसकी ओर ताकते हुए देखा, वह खिलखिलाकर हंस गई। The bird could only hope along, though he tried valiantly to fly. यद्यपि उसने उड़ने की बहादुरी पूर्वक कोशिश की, वैलियंटली मतलब बहादुरी पूर्वक उड़ने की कोशिश की, वह फिर टू फ्लाई व्हेन मिनी क्रॉल्ड अप टू हिम, यद्यपि उसने उड़ने की बहादुरी पूर्वक कोशिश की, फिर भी वह पक्षी सिर्फ कुछ दूर तक केवल क्या हो सका, केवल क्रॉल यानी फुदक सका, रेंग सका। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड होप्ड अवे, जब मिनी रेंग कर उसके पास पहुंची, he flapped his wings and hopped away. Minnie made a supreme effort and caught him. Promptly he nipped her. जब मिनी रैंक कर उसके पास पहुंची, when Minnie crawled up him, मिनी जो है वो रैंक कर उसके पास पहुंची, तो he flapped his wings, उसने अपने पंख फड़फड़ाए, and hopped away, और वो फुदक कर कुछ दूर चली गई। मिनी made a supreme effort, मतलब मिनी ने अपना अत्यधिक प्रयास किया और उसे क्या कर लिया, उसने पकड़ लिया। कैच कर लेना है ना, पकड़ लेना। तुरंत ही उसने क्या कर दिया, चोंच मार दिया। मिनी व्हाट हैपेंड, मिनी क्या हुआ, क्राइड हर मदर इन अलार्म, कमरे में प्रवेश करते हुए उसकी माँ ने चौंक करके पूछा। एंटरिंग द रूम, बट व्हेन शी सॉ द डक इन हर डॉटर्स आर्म,
ही हर अलार्म टर्न टू मैरियमेंट। लेकिन जैसे ही उस बतख को अपनी पुत्री की बाहों में देखा तो उसका चौंकना जो है वो प्रसन्नता में बदल गया। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे मित्र के लिए नाश्ता में लाई हूँ, शी अनाउंस्ड, माँ ने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ। द डोरबेल रैंग व्हेन मिनी वॉज कैजुअलिंग मित्र टू ईट हिज ब्रेकफास्ट। जब मिनी मित्र को नाश्ता खाने के लिए मना रही थी उसी समय दरवाजे की जो थी वो घंटी बज गई। व्हेन मिनीज मदर ओपन द डोर, जब मिनी की माँ ने दरवाज़ा खोला, शी वॉज ग्रीटेड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन all dressed smartly in their school uniforms. Auntie, may we see the birds? They asked. और उन्होंने देखा कि खोला, माँ ने जब दरवाजा खोला तो स्कूल की सुंदर यूनिफॉर्म में बच्चों के समूह का उन्होंने स्वागत किया। आंटी, क्या हम पक्षी को देख सकते हैं? उन लोगों ने पूछा। द चिल्ड्रन वे आर थ्रिटल्ड टू सी मित्र बीइंग फेड विथ एन इंक फिलर। और मित्र को ड्रापर से खाना खाते देख कर बच्चे जो है वो रोमांचित हो गए। थ्रिल्ड मतलब होना है, THRILL थी, रोमांचित हो गए। दे हेल्प्ड मिनी टू होल्ड हिम स्टिल वाइल ही वॉज बीइंग फेड। जब उसे खाना दिया जा रहा था उसी समय उन्होंने उसे पकड़ने में मिनी की क्या की, हेल्प की। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस। और स्कूल बस पकड़ने में उन्हें वहाँ से जल्दी जाना पड़ा। वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून, मिनी हम दोपहर में जो है वापस आएंगे, उन्होंने कहा। मिनी ऑल्सो गेट रेडी टू गो टू हर स्कूल। और फिर मिनी भी जो है अपने स्कूल को जाने के लिए तैयार हो गई। Minnie, what happened? Cried her mother in alarm, entering the room. But when she saw the duck in her daughter's hand, माँ ने जो बोला कि क्या हो गया, मिनी की चिल्लाने की आवाज़ को सुन करके, पर जैसे ही उसकी माँ ने उसे मिनी के हाथों में बाहों में देखा, आई हैव, तो वो खुश हो गई। उनका चौंकना जो था वो खुशी में बदल गया। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, शी अनाउंस, उन्होंने बोला मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। द डोरबेल रैंग व्हेन मिनी वॉज कैजुअलिंग मित्र टू ईच टू ईट हिज ब्रेकफास्ट। और जब मिनी अपने दोस्त को वो नाश्ता कराने के लिए जब वो खिला रही थी, द डोरबेल बेस्ट है, तब जो है डोरबेल घंटी बजी दरवाजे की। व्हेन मिनीज मदर ओपन द डोर, जब मिनी की माँ ने दरवाज़ा खोला, शी वॉज ग्रीटेड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चों का समूह जो था बच्चे वहाँ पर सभी सुंदर स्कूल की यूनिफॉर्म पहने खड़े थे। आंटी, मे वी सी द बर्ड? दे आस्क्ड, उन्होंने बोला क्या हम पक्षी को देख सकते हैं? द चिल्ड्रन वे आर थ्रिल्ड टू सी मित्र बीइंग फेड विथ एन इंक फिलर। और उनको बड़ा रोमांचित महसूस हो रहा था जब वो इंक फिलर से मिनी उसको खाना खिला रही थी। दे हेल्प मिनी टू होल्ड हिम स्टिल वाइल ही वॉज बीइंग फेड। और उनको जब वो खाना खिला रहे थे तो मिनी के साथ उन्होंने उसकी हेल्प भी की। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल। और फिर उसके बाद उन्हें स्कूल जाना था तो वे स्कूल को चले गए। वी विल बैक इन द आफ्टरनून मिनी, हम दोपहर में आएंगे, उन्होंने कहा। मिनी ऑल्सो टू गो टू रेडी टू गो हर स्कूल। और मिनी खुद अपने स्कूल को जाने के लिए फिर आगे तैयार हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ। पुअर डकी, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड। बेचारा बतख, अपने मित्रों से जुदा होना उसे कितना कष्टदायक लग रहा होगा। सैड बंटी, बंटी ने कहा। वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द इवनिंग वॉचिंग द डक, जो है शाम को बतख को देखते हुए बच्चों में से एक जो है वो बंटी नाम के इस बच्चे ने कहा। इट इज़ ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड बिकॉज ही इज़ लैम। और आगे क्या बोला, अब उसे, किसे, बतख को नए मित्र बनाना और अधिक कठिन हो गया क्योंकि वह लंगड़ा हो गया है। LAME, लैम यानी लंगड़ा हो गया है। सैड अंजू, अंजू ने कहा। एंड रियलाइजिंग टू लेट वॉट शी हैड सैड क्विकली कवर्ड हर माउथ। उसने कह तो दिया और बाद में यह महसूस करते हुए कि उसने यह क्या कह दिया तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसा उसे क्यों महसूस हुआ? क्योंकि उसको ये रियलाइज़ हुआ
कि मित्र भी लैम्ब यानी लंगड़ा हो गया है और जो वही कंडीशन मिनी की भी है, तो उसे महसूस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था, इसलिए फिर उसने अपना मुंह ढक लिया। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग सेड मिनी। मिनी ने कहा हम उसको मजबूत बनाएंगे, हम उसे ताकतवर बना देंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी। इस घटना के बाद पड़ोस के बच्चे जो थे मिनी के एक अच्छे दोस्त बन गए। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रियलाइज द एंग्विश मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रू बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विथ हर। जो बच्चों ने अंत में मिनी के संताप को समझा क्योंकि वे उसके साथ नहीं खेला करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट डे अंजू ब्रॉट अ फैट बुक विथ हर। सी यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स इन दिस। अगले दिन अंजू ने अपने साथ एक मोटी किताब ले आई। देखो, इसमें बतखों के बारे में तुम सब पढ़ सकते हो। मित्र इस कार्ला शॉबलर। उसने बताया मित्र शॉबलर कहलाती हैं। द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड द हर एक्साइटेडली एंड रीड ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ शॉबलर्स। और बच्चे जो थे चारों ओर उत्सुकता पूर्वक जो है वो एक्साइटेडली मतलब खड़े उत्सुकता पूर्वक वो खड़े हो गए और शॉबलर बतखों को की आदत के बारे में उन्होंने सब पढ़ लिया। मित्र मस्ट हैव फ्लोन 100 ऑफ माइल्स। नो सेड लिटिल प्रिया। नो हंड्रेड्स थाउजेंड्स करेक्टेड बंटी। और मित्र अभी तक सैकड़ों मील उड़ गया होता। नहीं, छोटी प्रिया बोली। सैकड़ों नहीं, हजारों। बंटी ने इस बात को करेक्टेड किया, संशोधित किया। ही विल फ्लाई बैक 1000 ऑफ माइल्स टू हिज होम अगेन। वह फिर अपने घर के लिए हजारों मील वापस उड़ जाएगा। फाइनली अंत में द डे ऑफ डिपार्चर ऑफ देयर एवियन फ्रेंड अराइव्ड। एवियन यानी होता आकाशीय, AVIAN एवियन यानी आकाशीय। अंत में उसके आकाशीय मित्र के डिपार्चर यानी विदाई का दिन आ गया। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू अ नियर बाय लेक। मिनी के पिता ने सभी बच्चों और बतख को पास की झील पर ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीज लैप एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। और जो बच्चे थे बच्चों ने मित्र को मिनी की गोद में से उठाया और धीरे से उसको लेक यानी झील में छोड़ दिया। He started swimming, shoveling the water with his beak। और अपने चोंच BEAK यानी चोंच से उसने पानी को हटाते हुए वह तैरने लगा। The children stood there for a long time watching। और उन्होंने बहुत देर तक खड़े होकर के वहाँ पर उसे देखा। The next day Minnie went into the balcony to watch the children play। अगले दिन मिनी बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए बालकनी पे गई। There was no one in the park। पार्क में कोई नहीं था। Suddenly the doorbell rang। अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। And in trooped all the children। आंटी trooped यानी came in a group मतलब फिर सब सारे फिर ग्रुप में आए और बहुत सारे बच्चे। आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विथ अस। और उन्होंने कहा आंटी कृपया हमारे साथ खेलने के लिए मिनी को पार्क में भेज दीजिए। दे सेड वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर। हम उसे उसकी व्हील चेयर पे सुरक्षित रूप से वापस ले आएंगे। विथ द होप ऑफ फिलिंग लिटिल हैंड्स मिनी वॉज टेकन डाउन द स्टेयर्स टू द पार्क। और इच्छुक छोटे हाथों की उन्होंने सहायता से मिनी को सीढ़ियों से, स्टेयर यानी होता है सीढ़ियों से नीचे उतार कर वे पार्क में मिनी को ले गए। मिनी नेवर हैड रीजन टू फील लोनली अगेन। और अब मिनी के पास अकेलापन महसूस करने के लिए कोई भी कारण नहीं था। दैट्स ऑल ऑफ दिस लेसन। all next exercise we will discuss in our next video. Thanks for watching. Have a nice day.